ETV اردو کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ PMO میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے دفعہ 370 پر دیے گئے بیان پر معذرت خواہی سے کیا انکار۔ جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا خلاصہ۔ محکمہ صحت کی خاتون ملازمہ کی طرف سے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر پر لگایا گیا دستاویزی کا الزام بے بنیاد۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر بشیر کا بیان۔ اور جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن ریاست میں کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے کرے گی کام۔ ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بیان۔ اور خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے دفعہ 370 پر دیے گئے اپنے متنازع بیان کے لیے معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے۔ جموں میں پارٹی ورکروں کی جانب سے والہانہ استقبال کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جتیندر سنگھ نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ مودی حکومت میں وزیر بننے کے بعد جتیندر سنگھ پہلی مرتبہ جموں آئے ہیں۔ جتیندر سنگھ نے کہا کہ وہ اس بیان پر پہلے ہی وضاحت دے چکے ہیں اور اس معاملے کو بند کر دینا چاہیے۔ اور باقی میں نہیں سمجھتا کہ شمع کی کوئی کسی بھی وشے میں کوئی گنجائش ہے۔ جس بہومت سے جنتا نے ہمیں چنا ہے، ہمارا دائتو اور ذمہ داری اب جنتا کے پرتی ہے، جنتا کی کسوٹی پر پورا اترنا۔ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے یقین دلایا کہ مودی حکومت کشمیری پنڈتوں کی محفوظ وادی واپسی کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ان خیالات کا اظہار جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ نئی حکومت کشمیری پنڈتوں کی باضابطہ کاری کے لیے کاربند ہے۔ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک بہت بڑی اپلبدھی ہونے والی ہے۔ کشمیری پنڈتوں کا نہ کیول واپسی ہونی چاہیے بلکہ ایک سمان جنک ڈھنگ سے ہو، سرکشت ڈھنگ سے ہو، اور جو کچھ انہیں پیکیج دینے کا پہلے پراودھان کیا گیا تھا شاید اس کو بھی ایک بار پنہ دیکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ شرنارتھیوں کے جو دوسرے شرینیاں ہیں، جو پشچم پاکستان کے شرنارتھی جن کے ناگرکتا ادھیکار نہیں ہے، پاک ادھیکرت جموں کشمیر کے شرنارتھی جن کے معاوضوں کا کام باقی ہے، بھن بھن جنگوں سے اجڑے ہوئے 65، ان سب کا ایک ساموہک ویو لے کر کے اس پرکار کی بات کرنے کا ایک یوجنا بنانے کا پریاس رہے گا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر مملکت نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ نئی حکومت جموں کشمیر میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کر رہی ہے۔ کر رہے ہیں کہ ایک روزگار میلے کا ایک شرنکھلا آرمبھ کرنے جا رہے ہیں، اور سمبھوتہ جولائی ماس میں کٹھوا نگری میں پہلا اس پرکار کا روزگار میلہ آیوجت کیا جائے گا۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ ہم نے بات بھی کر لی، اور اس کے بعد ترنت پردیش میں ایک ایمرجنسی ایمبولینس سروس جو کہ کئی ورش پہلے ہو جانی چاہیے تھی، جس پرکار پولیس کی ہے، فائر بریگیڈ کی، وہ 102 یا 108 نمبر کی ہوگی۔ لگ بھگ 100 ایمبولینسوں کا پراودھان اس چھیتر کے لیے، جموں چھیتر کے لیے کرا دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں 7-8 دن میں ہم نے کافی پہل کی ہے، پیش قدمی کی ہے۔ ادھمپور میں مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے روڈ شو کیا۔ روڈ شو ڈاک بنگلہ ادھمپور سے شروع ہو کر مختلف بازاروں سے ہوتے ہوئے DN پیلس پر ختم ہوا۔ روڈ شو میں کثیر تعداد میں BJP کے لیڈروں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے انہیں لوک سبھا انتخابات میں کامیابی دلانے کے لیے ادھمپور کی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ETV سے بات کرتے ہوئے جتیندر سنگھ نے کہا کہ عوام نے انہیں منتخب کیا ہے اور وہ عوام کی خدمت کے لیے کاربند ہے۔ ہمارا چناوی چھیتر ہے، وہ ہم سے اپیکشا کرتا ہے، اس کے وکاس کے جو ہم نے وچن دیے ہیں، وعدے دیے ہیں، اس کی بھی کاریہ اور یوجنائیں آرمبھ کرنی ہے۔ ہم نے یہ شروعاتی ایک سپتاہ میں 1-2 کچھ ایسے قدم اٹھائے ہیں۔ ایک تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اگلے ماس سے پرتیک مہینے میں ایک بار ایک روزگار میلہ ارتھات جاب فیئر لگایا جائے گا۔ ایک ماس میں کٹھوا میں ہو سکتا ہے، ایک ماس میں ادھمپور میں ہو سکتا ہے۔ دوسرا کچھ ایک چونکہ 5-6 دن بہت کم ہوتے ہیں، اس میں ایک اپلبدھی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے کوئی 100 ایمبولینسز کے لیے سواستھ منترالیہ سے نویدن کیا ہے، اور وہ بھی شاید منظور ہو جائے گا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر ملک بشیر نے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز اور دیگر چند افسران پر ایک خاتون ملازمہ کی جانب سے لگائے گئے دست درازی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔
डायरेक्टोरेट ऑफिस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने खदशा जाहिर किया कि इस मामले के पीछे कोई साजिश हो सकती है। इसी दौरान फील्ड डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी मुतालबा किया है कि पुलिस मामले की जल्द छानबीन करके कसूरवारों को बेनकाब करे। एसोसिएशन ने के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फिरदौस ने इस वाक़े के बाद महकमे का कामकाज मुतासर होने का खदशा जाहिर किया है। पहले मैं ये कहूँगा कि दिस अनफॉर्चुनेट फॉर अस, ये जो किस्सा हुआ ये अनफॉर्चुनेट है। जो ये FIR लॉन्च हुआ या ऐसे एलिगेशन जो कि बेस पे जहाँ तक हमारा ताल्लुक है बेसिस एलिगेशन, जब वो ऑफिशियल हमारे डायरेक्टर साहब से मिलने आई, वी वेर वेरी मच इन दिस रूम दैट टाइम। उसने क्या बात की, डायरेक्टर साहब ने क्या जवाब दिया, वो हमें पूरा पता है। वी वेर नियर अबाउट 7 ऑफिसर, जो स्टाफ ऑफिसर जितने भी हमारे यहाँ हैं, हम सब उस वक्त यहाँ बैठे हुए थे विद हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ डिपार्टमेंट को कोलैप्स होने का खतरा है अगर इन चीजों पे ध्यान दिया गया। हाँ, अगर कोई भी मुलव्वस है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप नेगेटिव साइड सोचिए। अगर ये बेबुनियाद है तो जिसने इल्जाम लगाया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि सिस्टम कामयाब रहे, ताकि सिस्टम वर्क करे, ताकि सिस्टम इंप्रूव हो जाए। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमारे HOD पे आज एलिगेशन लगी है, ये सारे सिस्टम को लगी है। सिस्टम को कोलैप्स होने का खतरा है। अनंतनाग के मुख्तलिफ अस्पतालों से जुड़े डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने कल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अहाते में एहतजाज किया। कल एक नर्स की जानिब से महकमे के डायरेक्टर पर जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात के खिलाफ तिब्बी अमले ने एहतजाज दर्ज कराया। एहतजाजियों का कहना है कि नर्स का ट्रैक सर्विस रिकॉर्ड ज़वाबित के मुताबिक नहीं है, इसलिए उसने डायरेक्टर CMO अनंतनाग और दीगर 2 डॉक्टरों पर झूठे इल्जामात आयद किए। तमाम वाक़े की मुकम्मल जांच कराने का एहतजाजियों ने मुतालबा किया है। रियासती वज़ीर सेहत की जानिब से इंक्वायरी के हुक्म पर एहतजाजियों ने इत्मीनान का इजहार किया है। She belongs to साउथ कश्मीर, हम इसको बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। जहां भी इसकी पोस्टिंग हुई आज तक, इसने हर जगह पंगा किया और कंप्लेंट बेसिस पे वो हर जगह से निकाली गई। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंक्वायरी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो, तो जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसको करारी सजा दी जाए। हमें इसमें कोई लैतुलाल नहीं होनी चाहिए। महकमे सेहत में मुबैना दस्तदराजी मामले की शिकार खातून नर्स ने उसे इंसाफ दिलाने की अपील की है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं भी झूठ का सहारा नहीं लिया है, बल्कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुझे बस इंसाफ चाहिए, चाहे आप लोग दिलाओ, कोई भी दिलाओ, कोई एजेंसी दिलाए, मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन मुझे कश्मीर में कोई इंसाफ नजर नहीं आ रहा है। इसी बंदे को कल प्रमोशन और की जाएगी कि नहीं, आप दूसरी चेयर ले लो। रही हूँ डायरेक्टर की CC फुटेज आप देख लीजिए, मैं कितने चक्कर उसने मुझे डायरेक्शन ऑफिस करवाए उस दिन में, आप देख लो CC फुटेज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यारीपुरा कुलगाम में हालात कशीदा हो गए। इलाके में लोगों ने मुकम्मल हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन का कहना था कि एक मकामी हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबा के साथ मुबैना तौर पर अपने ही स्कूल के उस्ताद ने छेड़खानी की। इलाके के लोगों ने इस वाक़े की मजम्मत की। उन्होंने मुलजिम को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। उधर पुलिस ने वाक़े का नोट लेते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। पुलिस ने भी लिया है, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, वो भी कस्टडी में है, मुजफ्फर अहमद मासर। तो उसने हमें यकीन दिलाया कि सर हम इसके बारे में पूरा ताउन आपके साथ करेंगे, हम उनको पूरा सजा दिलाएंगे सर। अभी आप क्या चाहते हैं? तो अभी हम ये चाहते हैं कि ये जो स्टाफ है सर, इसको यहाँ पर तब्दील किया जाए, चेंज किया जाए, और जो मुजफ्फर मासर है उसको पूरा का पूरा सजा मिलना चाहिए, उसको नौकरी से सस्पेंड किया जाए। ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल यारीपोरा के बच्चे जो थे अलॉन्ग विद स्टाफ पिकनिक पे गए थे, तो वापसी पे एक वाक़ा रनुमा हुआ जिसमें एक लड़की ने एक अपने टीचर पे छेड़छाड़ का इल्ज़ाम लगाया था। तो वो कल सुबह पुलिस स्टेशन आए, तो उसमें हमने मतलब फौरी तौर कार्रवाई करते हुए FIR रजिस्टर किया। FIR नंबर 46 अंडर सेक्शन 294-342 RPC रजिस्टर किया है। और जो एक्यूज्ड टीचर था उसमें मुजफ्फर अहमद मीर सनाब मोहम्मद अब्दुल्ला मीर काटपोरा का रहने वाला है और इसी हायर सेकेंडरी में पोस्टेड है। उसको हमने कल ही अरेस्ट किया है। तो हमारी तरफ से कार्रवाई जो थी
10 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हुई है। तो अब लोग यहाँ पर आए थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि यहाँ का जो स्टाफ है हायर सेकेंडरी का उसको रिशफल किया जाए। तो फिर बाद में यहाँ पर जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर है कुलगाम के, वो आए थे, उन्होंने लोगों को यकीन दहानी कराई कि कुछ दिनों के अंदर जो स्टाफ है इसको रिशफल किया जाएगा। डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर तारिक अली मीर का कहना है कि वादी के स्कूलों में अखलाकी तालीमात को अहमियत दी गई है। तारिक अली मीर ने इन ख्यालात का इजहार अनंतनाग के बरकपुरा में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के सालाना फंक्शन में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। इस मौके पर मीर ने कहा कि हालिया दिनों डोरू इलाके में एक स्कूली तालिबा पर हमला अफसोसनाक है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहिबान को एडवाइस दी है, हुक्म जारी किया है कि वो मॉरल एजुकेशन पर ज्यादा जोर दें ताकि जो घटना घटी है इन हादसात और वारदात से हम पीछे रहें। मैंने कंसर्न चीफ एजुकेशन ऑफिसर को उसी वक्त हिदायत दी। उस टीचर को हमने सस्पेंड किया, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और उसको अरेस्ट करवाया। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कस्बा शोपियां के बुनागाम चौक में नामालूम मिलिटेंटों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की विंटन गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग का ये वाकया उस वक्त पेश आया जब पुलिस की एक गाड़ी बुनागाम चौक से गुजर रही थी कि अचानक नामालूम मिलिटेंटों ने इस पर फायरिंग की। फायरिंग में 4 पुलिस एहलकार और 2 दुकानदार जख्मी हो गए। दुकानदारों की शनाख्त गुलाम अहमद जरगर और बशीर अहमद हजाम के तौर पर की गई है। जख्मियों को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। ताहम जख्मियों में पुलिस की एक एसपीओ की हालत नाजुक है। फायरिंग के इस वाक़े के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का घेराव कर लिया है। अनंतनाग के बस स्टैंड में एक धमाका हुआ। इस धमाके में 2 पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। लोग महफूज मकामात पर पनाह लेने के लिए इधर उधर भागने लगे। धमाका टाटा सोमो में हुआ। इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया गया है। फिकरपुरा बडगाम में गुज़श्ता रात 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने ज़ियारत पर मामूर पुलिस एहलकारों पर कातिलाना हमला करके टिकट से हथियार लेने में कामयाब हो गए हैं। फिकरपुरा में वाक़े हजरत सईद अली आली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया पर हिफाजत के लिए मामूर जम्मू कश्मीर पुलिस के टिकट पर 2 अफराद घुस गए, जिन्होंने कांस्टेबल शबीर अहमद मीर पर पिस्टल और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कांस्टेबल शबीर अहमद शदीद तौर पर जख्मी हो गया। हमलावर पुलिस विकेट से 3 SLR राइफलें छीनने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके विकेट पर तैनात एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। यहाँ जायरीन का काफी तांता बंधा हुआ था। रजौरी पुनुष से काफी लोग आए थे इधर। तकरीबन नियर अबाउट 8:15 बजे का टाइम था। मगरिब नमाज इख्तिताम हो चुकी थी और इसी असना में यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस की गारत लगी हुई है, उस गारत के अंदर कई नामालूम अफराद घुसकर वहाँ से हथियार छीन के ले गए और यहाँ इस वक्त भी जबरदस्त लोगों का हुजूम था और इसी असना में कहीं से फायर की आवाज़ भी सुनाई दी गई। मैं भी उस वक्त अपनी ड्यूटी पर मामूर था और बाकी मुलाजिमीन भी मेरे यहाँ पर मामूर थे ड्यूटी पर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने रियासत की हमाजहत तरक्की में यकीन रखने वाली पार्टी को वोट देने की आवाम से अपील की है। कल वो बानिहाल में एक अवामी जलसे से मुखातिब थे। मकामी MLA और वजीर ममलिकत बराए बिजली वक़ार रसूल वानी ने भी जलसे से खिताब किया। वक़ार रसूल का कहना है कि उनकी पार्टी ने इलाके की तरक्की के लिए बहुत काम किया है। इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ किस्म के गुमराहकुन नारे देते हुए
सियासी मफाद हासिल करने वालों से होशियार रहने की गुलाम नबी आज़ाद ने आवाम से अपील की। जो काम करने वाले लोगों के नाम पर वोट नहीं दिया, यही सबक आपके लिए भी है कि आप काम करने वाले लोगों को वोट दीजिए। ये जैसे हमारा मौसम आता है इलेक्शन का, तो मेंढक निकलते जब बरसात होती है, हर पत्थर के नीचे से आपको मेंढक निकलेगा। रियासती कांग्रेस के सदर सैफुद्दीन सोज का कहना है कि लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की हार की असल वजह जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तई अवाम की नाराजगी है। सोज ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तई लोगों का गुस्सा था, इसका रास्त असर कांग्रेस पर पड़ा। सोज ने मजीद कहा कि रियासत में पीडीपी की कोई लहर नहीं थी, बल्कि गुड गवर्नेंस की नाकामी और करप्शन में इजाफे की वजह से शिकस्त थी। सोज ने इन ख्यालात का इजहार बालामुला में यूथ कन्वेंशन में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। मेरे दिमाग में इंप्रेशन है यहाँ पीडीपी के हक पे कोई वेव नहीं थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराजगी थी। चूंकि हम कोalition में, इसका मतलब है कोalition से नाराजगी थी। इसलिए जब नाराजगी थी तो नाराजगी का नतीजा निकला कि हमारा वोट भी उस हद तक ट्रांसफर नहीं हो गया, इसीलिए शिकस्त हो गई। प्रैक्टिसेस में जो लोग हैं उनको सजा नहीं होती। आरईटी टीचर्स फोरम लीडरों ने बारामूला में रियासती कांग्रेस के सदर सैफुद्दीन सोज से मुलाकात की और अपने मुख्तलिफ मसाइल से उन्हें आगाह किया। टीचरों का कहना है कि वज़ीर आला और वज़ीर तालीम ने इनके मुतालबात को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन आज तक इनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया है। टीचरों ने सैफुद्दीन सोज से अपील की है कि वो उनके मसाइल को हल कराने की कोशिश करें। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जेकेसीए से कहा है कि वो वादी कश्मीर में खेल के मैदान को फरोग देने के लिए लाहेमंद तैयार करें। फारूक अब्दुल्ला ने कल श्रीनगर में क्रिकेट की सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अभी आईपीएल मैचों के इनेकाद के लिए तैयार नहीं है, लेकिन क्लब्स हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। उस हवाले से क्या कुछ पेश रखो? इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लब्स हम लोग उनके साथ खेलेंगे। एकेडमी भी अभी बन नहीं पा रही है, बनने वाली है। ये जो आप वो देख रहे हैं, ये तो सब कुछ यही है। आप सिर्फ ये बिल्डिंग जो है ये इसको बनाने वाले हैं, बाकी दिस इज ऑल फॉर द गुड ऑफ द स्पोर्ट्स। क्या कोई पहल की जाएगी, कोई मैच यहाँ पे हो अगले साल या इस साल जो है आईपीएल का मैच नेक्स्ट ईयर क्या पॉसिबल? तैयार नहीं है, हम आईपीएल के लिए तैयार नहीं है। तो कब तक हम तैयार हो सकते हैं? जब कश्मीर की हालत अच्छी होगी। क्या आपको लगता है कश्मीर की हालत अभी अच्छी नहीं है? मेरा आखिरी सवाल, कोर्ट में गए हैं यहाँ पे कुछ लोग जो है, एक ग्रुप कोर्ट में चला गया है और फंड्स जो है बंद हो गए, ग्रांट्स जो है बंद हो गए। क्या हो गया है? हमने कभी बंद नहीं होने वाले, इंशाल्लाह हम चलते जाएंगे। तो उसका असर नहीं होगा? कुछ असर नहीं होगा। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर और एमएलए इंजीनियर रशीद ने 7 जून को जम्मू कश्मीर के कौमी दिन के तौर पर मनाने की मांग की है। उन्होंने कल शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में पार्टी कारकुनों के हमरा जम्मू कश्मीर का झंडा लहराया। इस मौके पर रियासत का कौमी तराना भी गाया गया। इंजीनियर रशीद का कहना है कि जम्मू कश्मीर का कौमी झंडा यहाँ के लोगों की शनाख्त का अहम हिस्सा है, लेकिन इसे अभी तक एक साजिश के तहत नजरअंदाज किया गया है। जून 1952 को आज ही के दिन रियासती असेंबली जो थी, आइन साज असेंबली, वहां जो सदर असेंबली हुआ करते थे, जिनको आज आप स्पीकर बोलते हैं, जिसका आयोजन बाद में हुआ, उन्होंने इस झंडे को बाज़ाब्ता आइन का हिस्सा बनाया और जो तराना है इसको कौमी तराने का दर्जा दिया गया। और आज हमने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि हमारी शनाख्त कोई हमसे नहीं छीन सकता। और हम आज सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास कीजिए, इस दिन को कौमी दिन के तौर मनाइए, इसमें छुट्टी होनी चाहिए। और हर जगह जिस तरह 15 अगस्त की तकरीब मनाते हैं, बाकी तकरीब मनाते हैं, हमारा सबसे अहम कौमी दिन जो है वो 7 जून का दिन है। पहलगाम के रुकन असेंबली रफी अहमद मीर ने रियासती गवर्नर से गुजारिश की है कि वो गुफा के रास्ते में टेंट्स और दुकानों को कम करने के फैसले पर नजरसानी करें। रफी अहमद मीर का कहना है कि इस इलाके के तकरीबन सभी बेरोजगार नौजवान अमरनाथ यात्रा के यात्रियों की खिदमत करते हुए हर साल कुछ कमाई करते हैं। ताहम इस साल टेंट्स और दुकानों की तादाद में कमी की गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे अफराद बेकार रह गए हैं। रुकन असेंबली का कहना है कि इस फैसले से पहलगाम इलाके के गरीब लोग माशी तौर पर बुरी तरह मुतासर होंगे।
जम्मू सूबा पूरी तरह से शदीद गर्मी की लपेट में है। शदीद गर्मी की वजह से मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। जम्मू में जुमे का दिन इस मौसम का सबसे गर्म तरीन दिन था। इस दिन दर्जा हरारत 43.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत मामूल से 5 डिग्री ज्यादा रहा। जम्मू में 1953 में जून के महीने में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 47.2 रिकॉर्ड किया गया था। शदीद गर्मी की वजह से जम्मू में तिजारत भी मुतासर हो रही है। लोग दिन के औकात में घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आने वाले चंद दिनों में दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होगा। बीजेपी के लीडर फयाज अहमद भट्ट ने खीर भवानी मेले की कामयाबी के लिए पंडितों और मकामी मुसलमानों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि खीर भवानी जैसी मजहबी तकरीब के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारे के मनाजिर ने फिर ये साबित कर दिया कि फिरकावाराना हम आहंगी की कश्मीर की रिवायत आज भी जिंदा है। फयाज अहमद भट्ट ने माइग्रेंट पंडितों की वादी वापसी के लिए राह हमवार करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासती सरकार माइग्रेंट पंडितों की मुश्किलात का इजाला करने पर पूरी तरह नाकाम रही है। बिजबिहाड़ा के रुकन असम्बली अब्दुर्रहमान वीरी ने अनंतनाग के दड्डी महरामा में 25 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हो रहे ड्रिंकिंग वाटर स्कीम के प्रोजेक्ट का मुआयना किया। इस मौके पर वीरी ने कहा कि बिजबिहाड़ा टाउन और इससे मुत्तसिल इलाकों के लोगों को इस प्रोजेक्ट से फायदा पहुंचेगा और उनके पीने के पानी के मसाइल हल होंगे। कस्बे के जो लोग थे उनकी अक्सर ये ग्रीवियंस थी कि हमारा जो पानी इस स्कीम से आता था, क्रिकदुल का तो ठीक था, वो तो पहले अच्छा सा पानी था, उनको आदत उसी का था क्रिकदुल के पानी का, लेकिन इस पानी में काफी हद तक उनको अक्सर उन्होंने दिखाया कि ये गंदा पानी था, वो बाथरूम के लिए यूटिलाइज कर पीने के लिए कोई इस्तेमाल नहीं करता था। तो लेकिन अब जो स्कीम ये मुकम्मल होगी, अब वो जो लॉन्ग पेंडिंग ग्रीवियंस थी टाउन की, ये अब दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब बिजबिहाड़ा टाउन में पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। एक मकामी लीडर राबिया अल्ताफ ने श्रीनगर में कल अवामी इत्तेहाद फ्रंट के नाम से एक नई पार्टी बनाई है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राबिया ने कहा कि अवामी इत्तेहाद फ्रंट रियासत में अमन अमान को बहाल करने के लिए काम करेगी। राबिया अल्ताफ ने मजीद कहा कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उनकी पार्टी की अव्वलीन तरजीह होगी। The party, we have come as a new perspective, as a new party for गुजर बकरवाल तालिबात हॉस्टल डोडा में ज़ेर तालीम 75 तालिबात को कंप्यूटर, वाटर कूलर और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाला जरूरी सामान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डोडा शाख ने तकसीम किया। ज़ेर तालीम तालिबात कंप्यूटर तालीम तो हासिल करना चाहती थी, मगर वहां ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं थी। इन तमाम चीजों की फराहमी पर तालिबात ने SBI का शुक्रिया अदा किया। बैंक हुकाम का कहना था कि मुस्तकबिल में भी खैर सगाली के जज्बे के तहत हॉस्टल की तालिबात को हर किस्म की सहूलियात फराहम कराने की कोशिश करेंगे। अपने बच्चों को तो सभी परवरिश करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैडम जी ने एक इनिशिएटिव लिया है, 75 फैमिलीज ही आगे बढ़ेंगी। हमने स्कूल्स में एक्वागार्ड भी प्रोवाइड किया ताकि बच्चों को पीने के लिए स्वस्थ पानी मिले। गर्मी में बच्चों को जो है पंखे, कूलर वगैरह भी प्रोवाइड किए हैं। और आगे भी हम इस इंस्टीट्यूशंस के लिए मैं ब्रांच मैनेजर साहब से गुजारिश करूंगा कि बैंक डे के दिन कुछ ना कुछ, ये कन्याएं हैं, ये हमारी जो भाग्य विधाता हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ करते रहें। नौजवान रिफ्यूजी लीडरों के ग्रुप ने POK रिफ्यूजियों की हिफाजत के लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन कायम की है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम POK रिफ्यूजीज राइट्स एंड रिहेबिलिटेशन फोरम रखा गया है। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस फोरम के लीडरों का कहना है कि माजी में रिफ्यूजियों के बहुत सारे लीडरों ने रिफ्यूजियों के जज्बात से खेलने के अलावा इनके लिए कुछ नहीं किया है। हर कुंड से लेके कठुआ तक उसको हमारे रिफ्यूजी POK रिफ्यूजियों के मफाद को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हर पार्टी हर जगह पे बेचा है। हम उनकी इसमें तौहीन करते हैं और आगाह करते हैं रिफ्यूजी समाज को
कि इन लोगों से जो सेल्फ स्टाइल लीडर बने हुए हैं इनसे बचकर रहें। आज जो नया मुद्दा ये छेड़ रहे हैं कि आने वाले असेंबली इलेक्शनों में ये हर पार्टी को डरा रहे हैं कि हम अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। पिछली बार भी जो इलेक्शन हुए इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, बाद में इन्होंने अपने जाति फायदे के लिए पैसों के बिहार पे ये सारे उस पार्टी के बिहेव में बैठ गए। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी ने धमकी दी है कि अगर हुकूमत ने 17 जून तक मुलाजमीन के पेंडिंग मसाइल को हल नहीं किया तो फिर से एहतजाज किया जाएगा। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए GEJAC ने कहा है कि हुकूमत ने उनके बाज़ मुतालबात को मंजूर किया है, ताहम अभी भी बहुत सारे मुतालबात मंजूर नहीं किए गए हैं। नंबर 8 बजटरी सपोर्ट टू द PS। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये जितनी भी डिमांडें हैं इनको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए, नहीं तो आने वाले 17 तारीख को हमने एक प्रोटेस्ट रखा है जो प्रेस क्लब के सामने होगा, प्रेस क्लब के सामने होगा और सरकार को इमीडिएटली उससे पहले विद इन टाइम लेटर एंड स्पिरिट इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। करगिल में अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज ने रियासती सतह का महफिल मुशारा मुनक्किद किया। अकेडमी ने JNK दरदशीन डेवलपमेंट सोसाइटी के इश्तराक से अकेडमी हॉल बारूद करगिल में मुनक्किद किया गया। इस मुशारे में द्रास और दुरुस के 35 शोरा ने इस मुशारे में शिरकत की। इस मौके पर रजा अमजद की लिखी हुई पहली शीना किताब जम्मू कश्मीर में आबाद शीन दर्दों की मुख्तसर तहरीक की रस्म इजरा भी अमल में आई। ETV उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब।